April 2nd, reciprocal tariffs kick in. On 2nd April 2025, ट्रम्प ने हर कंट्री पे इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए। I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Tariffs are going to make us rich as hell. Markets are tumbling. American investors alone have lost some $2.4 trillion in one day. This is the biggest one-day wipeout since 2020. Leader of every country on this planet came forward and spoke against Trump. The era of rules-based globalization and free trade is over. Trump's announcement of decisions to be tariffs in place. And development. The country has been the largest. But I think something very fundamental is shifting in the world order. Trump को 1% भी फर्क नहीं पड़ा. And what did Trump do? Trump called them weak and stupid. On 8th of April 2025, Trump did a speech जहाँ पे, you know what he said? Well, I'll play it for you. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Then on 9th of April 2025, Trump tweeted, "Be cool. Everything is going to work out well." इतनी uncertainty के बीच, Trump told Americans and the whole world to be cool. This tweet was posted at 9:33 a.m. in the morning, and within 4 hours, उसी दिन 1:18 पे, Trump announces a 90-day pause on tariffs except for China. Something happened. Bond market is very tricky. I was watching it. US bond market crashed. Let me give you one more example. India से. In 2013, $1 was equal to about ₹53. और सिर्फ 3 महीने के अंदर it crashed to 67 rupees. Our currency depreciated by 26% in just 3 months. क्यों? Because of bond market. What is bond market? Why does it matter so much? And does it actually matter so much? Well, you will be surprised. Forget countries for a moment. Bond market dictates कि आप और हम अपने होम लोन और कार लोन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे. हमारे बैंक्स, हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हमारे प्रोविडेंट फंड्स में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलेगा. डेट म्यूचुअल फंड्स, जिसको लो रिस्क फंड में माना जाता है, उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज ऑल्सो डिक्टेटेड बाय बॉन्ड मार्केट्स. नो वन इज अनटच्ड बाय बॉन्ड मार्केट्स. देखो, वी ऑल नो अबाउट द स्टॉक मार्केट. कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, दिन भर न्यूज में चलता रहता है. ग्लोबल स्टॉक मार्केट इज वर्थ ओवर $115 trillion, whereas global bond market is worth over $140 trillion. Still, we know so little about the bond market, and more importantly, we know so little about how it dictates government policies around the world, how it shapes government budgets around the world, how it shapes government spending around the world. देखो, स्टॉक मार्केट सिर्फ उन टॉप 10% इंडियंस को अफेक्ट करता है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट बॉन्ड मार्केट पूरे इंडिया को इंपैक्ट करता है. सो देखो, बोथ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर वेल्थ, but we need to talk about how to protect that wealth. Most Indians are just one hospitalization away from bankruptcy. सिर्फ एक सर्जरी का बिल और सालों की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब खत्म, सब जीरो. इससे बचने के लिए एक इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज वेयर Ditto comes in, sponsor of today's video. Well, first of all, they're backed by Zerodha, so that speaks volumes. The issue is कि आपको कौन सा इंश्योरेंस खरीदना है, उसका कवर कितना होना चाहिए, उसे कौन से फीचर्स आपके लिए बेस्ट सूटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्लेम लेना पड़े तो वो कैसे लेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए Ditto इज ऑफरिंग कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको बस इस वीडियो के पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और एक फ्री कंसल्टेशन बुक करनी है, एंड दे विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस. एंड डोंट वरी, वो आपको कभी फालतू के स्पैम कॉल्स नहीं करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब क्लेम सेटलमेंट का टाइम आएगा तब भी ये आपकी हेल्प करेंगे. अगेन, पिन कमेंट में लिंक है, वहां जाके अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करिए. सो नाउ लेट्स कम बैक टू अंडरस्टैंड हाउ बॉन्ड मार्केट्स साइलेंटली कंट्रोल द वर्ल्ड. सो लेट्स से आई वांट टू बाय अ हाउस. ये मेरा पहला घर है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. ये घर की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, पर मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे तो है ही नहीं. सो व्हाट डू आई डू? आई कॉल 10 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. मेरा हर दोस्त मुझे 10 लाख रुपए 10 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने को तैयार है. देखो, आई एम हैप्पी क्योंकि नाउ आई कैन फाइनली बाय माई ड्रीम होम. माई बेस्ट फ्रेंड्स आर हैप्पी क्योंकि उनको घर बैठे बैठे हर साल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल बाद 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल लोन अमाउंट भी वापस मिल जाएगा. एंड आई जस्ट क्रिएटेड अ बॉन्ड. इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसकी वैल्यू होगी 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड बॉन्ड यील्ड इस केस में जो होगी 10%, विच अमाउंट्स टू 1 लाख रुपी पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years. नाउ दैट यू नो व्हाट इज अ बॉन्ड, एक इंपॉर्टेंट चीज और समझनी है आपको. नाउ लेट्स इमेजिन आई लूज माई जॉब.
सडनली मेरे एक बेस्ट फ्रेंड को डाउट होने लग जाएगा कि यार मैं उसे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे भी पाऊंगा या नहीं, या फिर आई माइट डिफॉल्ट, जिस केस में मेरे बेस्ट फ्रेंड का 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट का तो नुकसान होगा ही, ऊपर से जो 10 लाख रुपए प्रिंसिपल जमा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जो बॉन्ड का पेपर है वो बेकार हो जाएगा। ऐसे केस में मेरा बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्त के पास जाएगा और बोलेगा, देखो आई हैव दिस पीस ऑफ पेपर वर्थ 10 लाख रुपीज एंड इट विल पे यू 1 लाख रुपीज एज इंटरेस्ट एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years। प्लीज 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 बाय दिस बॉन्ड फ्रॉम मी फॉर 10 लाख रुपीज, क्योंकि मुझे अपने 10 लाख रुपए वापस चाहिए। देखो, हिज फ्रेंड सेज दैट इज फाइन, बट इस बॉन्ड का जो इशूअर है यानी मुझे भी पता उसकी जॉब चली गई है, एंड दस दिस 10 लाख रुपी इन्वेस्टमेंट नाउ कैरीज अ हायर रिस्क। दस ही सेज मैं इसके 10 लाख रुपए तो नहीं दे सकता, लेकिन देखो मैं तुम्हें इसके 6 लाख रुपए दे दूंगा। माई बेस्ट फ्रेंड इज सैड, बट ही थिंक्स कि पूरा 10 लाख चले जाए उससे बेटर है कि कम से कम 6 लाख तो वापस मिल जाए। सो व्हाट डज माई बेस्ट फ्रेंड डू? माई बेस्ट फ्रेंड सेल्स द सेम बॉन्ड वर्थ 10 लाख रुपीज टू हिज फ्रेंड फॉर जस्ट 6 लाख रुपीज। और क्योंकि मुझे तो 1 लाख रुपए ही देने हैं इंटरेस्ट में, तो अब उसके दोस्त को अपने 6 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हर साल मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 10 years। सो इफेक्टिवली उसे अपने 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 16.6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आई हैव इफेक्टिवली क्रिएटेड अ बॉन्ड मार्केट। इसीलिए बोलते हैं जब बॉन्ड प्राइस गिरता है तो उसकी यील्ड बढ़ती है। एंड सिमिलरली अगर उसी 10 लाख के बॉन्ड को मेरा बेस्ट फ्रेंड अपने फ्रेंड को 12 लाख रुपए में बेच दिया होता, तो मैं तो 1 लाख रुपए ही इंटरेस्ट दूंगा टू द न्यू बॉन्ड ओनर। सो द न्यू बॉन्ड ओनर वुड नाउ गेट 8.3% interest. So when the bond prices increase, the yield decreases. In the real world, I'm not issuing bonds to buy a house. Countries are issuing bonds to build bridges, to build metros, to build trains, and to build public infrastructure. And governments absolutely love raising money through bonds. अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में 23,000 करोड़ का खर्चा है। उसमें से 10,000 करोड़ इज बीइंग रेज्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। जो नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए अदानी एयरपोर्ट्स इशूड बॉन्ड्स ऑफ $750 million यानी 6,300 करोड़ रुपए। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रेज्ड 224 crores or $26 million by issuing municipal bonds. And you won't believe, currently इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल मार्केट से बॉन्ड्स इशू करके $2 trillion उठा रखे हैं, जो इंडियन रुपीज में इतने होते हैं। दैट्स लाइक 1.7 crore रुपीज। दिस इज वेयर द वीकनेस बिगिंस, क्योंकि बॉन्ड्स रेगुलरली इशू करके लोन उठाना तो आसान है, बट उसका इंटरेस्ट आपको हर साल पे करना पड़ेगा। हमारे बजट में अगर हम 100 रुपीज खर्च करते हैं तो उसमें से 25 रुपीज यानी 25% गवर्नमेंट लोन्स के इंटरेस्ट को पे करने में जाता है, और ये इंटरेस्ट कितना होगा ये उसी बॉन्ड की यील्ड से डिसाइड होता है। एंड दिस इज वेयर बॉन्ड मार्केट्स exert their control. Let me take you back to 2008. US stock market had collapsed. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. Stock market is now down 21%. We're now down 43%. Lehman Brothers was out of money and filed for bankruptcy. Citigroup's stock crashed 60% in 1 week. Banks के पास कैश बचा नहीं था, meaning they cannot lend money to anyone, meaning सारा business ठप हो गया था। Money stopped moving, everything just came to a standstill. So US Federal Reserve ने क्या किया? US Federal Reserve is their Reserve Bank of India, RBI by the way. US Federal Reserve started buying a lot of bonds from these banks, and in return US Fed gave them cold hard cash which they could use to lend further and conduct business. Now the natural question is, US Fed के पास इतना सारा कैश आया कहां से जो वो बैंक्स के बॉन्ड्स को खरीद पा रही थी? कहीं से नहीं। They just printed money out of thin air. The technical term for this is called quantitative easing. आसान भाषा में इसी को मनी प्रिंट करना कहा जाता है। Between 2008 and 2013, US Federal Reserve printed almost $2 trillion by purchasing bonds from these banks. And this was huge. For instance, India की GDP in 2013 was $1.9 trillion, meaning US Fed printed more money than the India's GDP at that time. And when the government खुद ही is buying so many bonds, bond prices go up. And do you remember जब bond prices ऊपर जाते हैं तो yield का क्या होता है? Yield कम हो जाती है. This allowed the treasury bond yield to remain less than 2% all the time. Now, एक बार सोचो, एज एन इन्वेस्टर क्या आप ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे जो आपको 2% का इंटरेस्ट भी ना दे?
तो क्या हुआ? What was the result? So a lot of these bond investors, they came to India and they started buying Indian bonds instead. जहां पे US bonds मुश्किल से 1.5 से 2% का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, Indian bonds अराउंड 8% का इंटरेस्ट पे कर रहे थे. And this was great for India for two reasons. First of all, foreign investors जब Indian bonds खरीदते हैं, they pay in US dollars. बट वो इंडियन रूपी में कन्वर्ट करके बॉन्ड खरीदा जाता है, मीनिंग रूपी की डिमांड बढ़ती है और उससे यूएसडी आईएनआर का जो एक्सचेंज रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल रहता है. द सेकेंड रीजन इज दिस अलाउड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू कीप रेपो रेट्स लो. From 2008 to 2013, RBI's repo rate fluctuated between 5% to 6.75%. इसका मतलब ये है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंडिया मार्केट से पैसा उठा सकती है. और जनरली क्योंकि होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट पे डिपेंड करता है, कॉमन पब्लिक को बैंक से लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है. एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट फॉर इंडिया. बट देन ऑन May 2013 this happened. The committee decided, starting next month. By the way, this is Ben Bernanke, US Fed chairman, and he's about to say something which will not just affect Americans, it will affect you, me, and everyone around the world. The committee decided, starting next month, to modestly reduce the pace at which it is increasing the size of the Federal Reserve's balance sheet. Wait. ये सुनने में तो इंपॉर्टेंट लगा नहीं, but it is. थोड़ी देर में ये ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को सेट ऑफ करेगा जिससे आप और हम दोनों इंपैक्ट होंगे. ही इज सेइंग कि वो धीरे धीरे बॉन्ड खरीदना कम कर देंगे, मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब मनी प्रिंट करने की स्पीड को थोड़ा धीरे कर देंगे. ये भूलते ही यूएस बॉन्ड यील्ड स्पाइक्ड. इट वेंट फ्रॉम 1.76% to 2.9%. दिस वॉज अ ह्यूज जंप. बॉन्ड यील्ड एकदम से कैसे बढ़ गई वैसे? वेल, जैसे ही फेड चेयरमैन ने बोला कि ही माइट रिड्यूस फ्यूचर बॉन्ड परचेजेस, मीनिंग कि फ्यूचर में बाइंग प्रेशर कम हो जाएगा बॉन्ड्स का, तो बॉन्ड प्राइसेस क्रैश्ड. जिसका मतलब बॉन्ड यील्ड्स जो बॉन्ड प्राइसेस के रिवर्स में चलती हैं, दे स्पाइक्ड. नाउ थिंक अबाउट इट. जितने भी बॉन्ड इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा था, सडनली उनको यूएस बॉन्ड्स में पहले से बेटर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था. तो जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स पहले इंडिया के 8% यील्ड से खुश थे, अब उन्हें और ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए था इंडिया से. तो क्या किया उन्होंने अपने सारे इंडियन बॉन्ड्स बेचे, उससे जो रुपए मिले उसे डॉलर में कन्वर्ट किया और जाके यूएस के बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए. यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी और इंडियन रुपी की डिमांड कम हो गई और इंडियन रुपी $1 इक्वल टू 53 रुपीज से $1 इक्वल टू 67 रुपीज पे जाके गिर गया, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर. दिस वॉज अ ड्रॉप ऑफ 26% इन ओनली 3 months. फिर आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई एक ही चीज कर सकती थी. जो रेपो रेट 6.75% चल रहा था उसे बढ़ा के 7.25% किया गया, फिर 7.5%, फिर 7.75% और फिर 8% तक बढ़ा दिया गया. तब जाके रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट थोड़ा संभला. जैसे ही आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाया, एवरी लोन दैट यू टेक इन दिस कंट्री गॉट एक्सपेंसिव. आपका होम लोन, आपका कार लोन, आपका पर्सनल लोन, आपका बिजनेस लोन, एवरीथिंग, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है. उससे क्या होता है? जो इंसान घर खरीद रहा है वो शायद अब घर नहीं खरीद पाएगा या फिर अपनी ईएमआई उसे ज्यादा देनी पड़ेगी. जो इंसान बिजनेस से पैसा लगाना चाहता है वो शायद बिजनेस लोन नहीं ले पाएगा. और इसीलिए जो प्रोडक्शन है कंट्री का और जो कंजम्पशन है कंट्री का, दोनों में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी फ्यूचर में बॉन्ड निकालेगी उस पर उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा. एंड रिमेंबर, आई टोल्ड यू, हमारे बजट में अगर हम 100 रुपए खर्च करते हैं तो उसमें से 25 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है. तो अब ये 25 रुपए जो इंटरेस्ट में जाता है ये वहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा ठीक है, व्हाट इफ एक नेचुरल क्वेश्चन आ सकता है कि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है पर आरबीआई अपना रेपो रेट ना बढ़ाए तो क्या ही बुरा हो जाएगा? सो देखो, अगर आरबीआई अपना रेपो रेट ना बढ़ाए तो इंटरनेशनल बॉन्ड इन्वेस्टर्स इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे या फिर एटलीस्ट कम खरीदेंगे. मतलब लोअर डिमांड फॉर इंडियन रुपी, मतलब इंडियन रुपी और ज्यादा डिप्रिशिएट करेगा. मतलब हमारे सारे इंपोर्ट्स जिसमें मेजर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो हमें अब महंगे पड़ेंगे. मीनिंग पूरे देश में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, जिसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को कभी ना कभी इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा. सो देखो, वी टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड हाउ इंडिया इज वल्नरेबल टू द बॉन्ड मार्केट. आई मीन इट्स फाइन, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, सो हमें थोड़ा संभल के अपने पांव रखने पड़ेंगे. But let's talk about America for a minute. America एक developed country है, the most powerful country on this planet. But even for America, they are very scared of bond investors. Do you remember how Trump introduced tariffs that we talked in the introduction of this video? April 2nd, reciprocal tariffs kick in. So after Trump introduced tariffs on 2nd April 2025, एक common consensus ये था कि this will lead to inflation in America. क्योंकि ultimately imagine this,
दिस टॉय फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट $100. टैरिफ लगने के बाद मान लीजिए इसकी कॉस्ट हो जाती है $120. तो जो $20 इंक्रीमेंट अमाउंट है ये कौन पे करेगा? ये कंज्यूमर्स ही पे करेंगे। वॉट एवर टैरिफ्स ट्रम्प इज प्रपोजिंग वो सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा और वो सीधा सीधा कंज्यूमर्स ही पे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में ट्रम्प सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठा के यूएस ले आएगा। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो आप एक बॉन्ड इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो, मान लो मुझे बॉन्ड्स में 3% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन 2% है, तो मेरा रियल रिटर्न कितना हुआ? 1% हुआ। अब अगर इन्फ्लेशन 2% से बढ़ के 4% हो जाएगा तो आई एज अ बॉन्ड इन्वेस्टर विल डिमांड अ यील्ड ऑफ 5%, सो दैट कम से कम मेरा अभी भी रियल रिटर्न 1% ही रहे। इसलिए जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यील्ड्स गो अप। नाउ फॉर अमेरिका दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो इज ओवर 120%. US is very much dependent on raising debt. In fact, one of the major reasons US में डेवलपमेंट इतनी तेजी से हुआ है is US के पास हमेशा cheap debt की availability रही है। US could raise vast amounts of money for its development with a very low interest rate. Any threat to that is a threat to American economy as a whole and not just stock market. इसीलिए as soon as the bond market panicked, Trump panicked and introduced a 90-day pause period. सारी गवर्नमेंट को बॉन्ड मार्केट पसंद है क्योंकि इट्स एन ईजी वे टू रेज मनी। बट बॉन्ड इन्वेस्टर्स आपको पैसा तो दे देते हैं बट इंश्योर करते हैं कि कंट्रीज अपना बजट एक फिस्कल डिसिप्लिन के साथ संभालें। अगर कोई कंट्री फालतू के टैक्स कट्स देना शुरू कर दे या फालतू के खर्चे करना शुरू कर दे या ऐसी कोई भी चीज जिससे उसकी रीपेमेंट एबिलिटी पे शक होना शुरू हो जाए तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स हायर यील्ड तुरंत डिमांड करने शुरू कर देते हैं और कंट्री की जो कैपिटल रेस करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको कम कर देते हैं। सोच के देखो, इंडिया का सिर्फ 10% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बट बॉन्ड मार्केट में कोई इन्वेस्ट करे या ना करे, पूरा इंडिया इंक्लूडिंग द सुपर रिच फोक्स, द कॉमन मिडिल क्लास पर्सन सब इफेक्ट होते हैं। दिस इज हाउ अनलाइक स्टॉक मार्केट विच इज वेरी फ्लैशी, वेरी chaotic, bond market silently pulls all the strings and silently controls everything in the world. If you love this video, why not share it with your friends? And remember, इस वीडियो के पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर जाके आप डिट्टो के साथ एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जहां पे आप इंश्योरेंस रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।